MSME, SEDBI एंड DIC के बारे में मुझे कौन बताएगा शॉर्टकट में? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Yes, batch 2, roll number 46. Yes, ma'am. Yes, you can tell me, बच्चे. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, MSME. Yes. MSME stands for micro, small, and medium enterprises, which was established by the government of India through MSME Act 2006, and it was implemented in 2007, and it plays a very important role towards our GDP. It contributes 8% in our GDP, and as of now, there are more than 6 crore 4,81,245 MSMEs are available in India, and they basically help new entrepreneurs by in his technological advancement, and they also support in his export, and in government incentives, subsidies, and to take loans, and it consists of three types of enterprises: small, medium, micro, small, and medium. If a new entrepreneur is going to invest up to 25 lakhs in his business, in his manufacturing and service sector, then it will come under micro enterprises. And the second one is small. If a new entrepreneur is going to invest between 25 lakh to 2 crore, then it will come under small enterprises. And if a new entrepreneur is going to invest between 2 crore to 5 crore, then it will come under medium type of enterprises, and they will get collateral free loan under MSMEs. Okay, what are the various schemes? Very good, Harsh. And one more thing I just want to add on, that the amendment was made in 2018 in MSME, right? So because Yes, of ma'am, that, it was the rectified. changes of loan amount is changed, right? And what are the various schemes under the MSME? Any schemes you have learned about it? Ma'am, awareness program. Awareness program. Okay. In which, ma'am, any schemes under MSME which is established for the, either that is for the loan, either that is for the entrepreneurs? You have any idea about it? No, ma'am. Okay, Sonam, batch 2, roll number 22. Sonam? Yes, ma'am. Sonam, बच्चे बताओ मुझे कि there are any scheme which is under the MSME? Schemes under MSME? Don't know, ma'am. And what about SIDBI? Small industry. हाँ, Yes, SIDBI. ma'am. SIDBI के बारे में बताइए and schemes के बारे में बताइए. Ma'am, SIDBI, it is established in 1990, 2nd April. और ma'am, SIDBI का aim है ma'am growth and development of MSME, credit flow focused by MSME. और ma'am, the main objective of SIDBI is promotion and development program, banking facility, risk sustainable, credit plus approach, and some additional work also, ma'am. Training, skill development, modernization and upgradation. Ma'am, it is a statutory body through Act, and SIDBI work under the RBI, and there are different schemes. First, SMILE. Second, SMILE Equipment Finance. Third, Stand Up India Sustainable Finance Scheme. Loaned under partnership with original equipment manufacturer. SIDBI Trader Finance Scheme. Speed, loan for purchase equipment for enterprise. And ma'am, yes, ma'am. Okay, very good, Sonam. Yes, Piyush. Piyush, batch 2, roll number 52.
Yes, ma'am. Tell me about DIC. What, ma'am? DIC? Yes. Ma'am, full form of DIC consists of District Industrial Center. Hmm. It is to operate in the district level, and it is to support the entrepreneur and mostly who is new in his business, and it and in Bihar, it found in Aurangabad. There are offices which are found in Aurangabad, Patna, and Ara, etc. And eligibility criteria of the DIC is that eligibility criteria of DIC is that person who belongs from the OBC or SC, or the person who is to sweepers, who is to sweep, and there are various boards which are in the district industrial center, and that is different for all the SC, OBC, and the sweepers, and the board of SC is known as National Scheduled Caste Finance and Corporation, and the annual income of SC up to 40,000 in the rural area, that will get loan from the DIC, and if he belongs from the urban area, then 55,000 is up to 55,000 we will get loan. And second board of for the OBC is named in National OBC Finance and Corporation, and the OBC get from the loan up to 5 lakh, and the rate percent will about 5 to 6%, and there is also separate board for PWD, and he will get up to 25 lakh rupees, and there are many functions of the DIC, and they are development of industries, identification of suitable scheme, and electrical problems, government subsidy, etc., training program, and supplying the raw material. That is also Yes, the ma'am. part of DIC's development Yes, of ma'am. that particular infrastructure development. ठीक है, सिक जो आपके बेसिकली इंडस्ट्रीज हैं उनको रिनोवेट करना, ठीक है, तो दीज ऑल आर द बेसिकली वर्क ऑफ द DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है. सो वेरी Yes, गुड. and- खैर बुक में नाबार्ड के बारे में ज्यादा गिवन नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू टेल यू that there are various programs which was started under NABARD. तो NABARD आखिर है क्या? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट. नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट को स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है. इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है नाबार्ड का, और इसको शुरू करने का क्या रीजन था? यस सोनम. मैम ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी भी आएगा कि सपोर्ट एजेंसीज के बारे में लिखिए, तो यू जस्ट नीड टू राइट अबाउट 2-3 थिंग्स. फर्स्ट, MSME के बारे में जरूर लिखना है, सिडबी के बारे में जरूर लिखिएगा, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप IIE लिख सकते हैं, NIES BUD लिख सकते हैं, ठीक है. EDII के बारे में शॉर्ट में लिख सकते हैं. तो 3-4 आप उनका नाम एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा, और नाबार्ड के बारे में भी लिखिएगा जरूर, ठीक है. तो ये कुछ सपोर्ट एजेंसीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ स्कीम्स वगैरह हैं. तो आज हम नाबार्ड में क्या पढ़ रहे थे कि नाबार्ड जो है वो 1982 में उसको स्टैब्लिश किया गया, और बेसिकली जो इसका काम क्या था, ये एक रूरल एरियाज, रूरल डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया. रूरल डेवलपमेंट में चाहे वो वाटर फैसिलिटी हो, चाहे मतलब इरिगेशन या फिर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज हो, या फिर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या वहां के हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात हो, इन सब के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड को लाया गया, नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया. और एक चीज और कि नाबार्ड के अंडर में आपके सारे कोऑपरेटिव बैंक जो रूरल एरियाज में और डिस्ट्रिक्ट एरियाज में है वो, और साथ साथ आपके RRB रीजनल रूरल बैंक सारे कंसिस्ट करता था नाबार्ड. यानी नाबार्ड रेगुलेट करते थे इन बैंक्स को. रीजनल रूरल बैंक्स जो है उनके बारे में शॉर्टकट में बता देती हूँ कि RRBs जो है रीजनल रूरल बैंक, इसको 1975 में क्या किया गया था, एक्ट आया था, बिल पास हुआ था, और उसके बाद इसका जो मेन वर्क जो था, इम्प्लीमेंटेशन था 1976 से स्टार्ट हो गया.
अर्लियर जब ये आया था तो 1975 में लगभग 5 बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर को, ठीक है। बाद में धीरे धीरे इन बैंक्स की जो नंबर्स थे वो इंक्रीज होके 190 तक पहुंच गए, बट अभी बिकॉज ऑफ द मर्जर की वजह से लगभग 43 रीजनल रूरल बैंक प्रेजेंट है। रीजनल रूरल बैंक रीजनल एरियाज में लोन देने का काम करती है, लोकल एरियाज में, गांव में बेसिकली लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, तो नाबार्ड उसको भी कंसिस्ट करता है। तो इन शॉर्टकट नाबार्ड क्या है समझ में आ गया होगा, दैट बैंक इज फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ये रूरल डेवलपमेंट का बैंक है और ये पूरा रूरल एरियाज में, चाहे वो हर एक फैसिलिटी हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, चाहे फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के इंडस्ट्रीज हो गए, सारी चीजों पे ध्यान देता है कौन, यहाँ तक लाइव स्टॉक पे भी ध्यान देता है। एग्रीकल्चर में तो दोनों आ जाता है, आपका फार्मिंग भी आ जाता है और आपका लाइव स्टॉक भी आ जाता है, यानी कि वहां पर डेयरी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चल रहे हैं वो भी नाबार्ड के अंडर में चलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज नाबार्ड का है, लेकिन नाबार्ड के बारे में हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो कैसे इफेक्टिव है नाबार्ड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाबार्ड जो है वो लोन वगैरह भी प्रोवाइड करता है। किसी को फीचर लिखना है नाबार्ड स्कीम का, नाबार्ड फंडिंग और रीफाइनेंसिंग, ठीक है। फंडिंग और रीफाइनेंसिंग के बाद सेकंड लिखिए, सेकंड राइट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट प्लान्स और क्रेडिट फैसिलिटीज, credit facilities, guidance and supports for the RRBs and cooperative banks, guidance and support for the RRB, guidance and supports for the RRB and cooperative banks, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, putting into place any of the government developmental, putting into the place any of the government's developmental schemes aimed for helping the growth of rural areas, aimed for helping the growth of rural areas, यानी रूरल एरियाज में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाए जाते हैं। और एक बात और बता दो, योजना और स्कीम जो होता है वो सबसे ज्यादा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड रूरल एरियाज में लाए जाते हैं, पता है ये चीज, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू द रूरल आर्टिस्ट, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द रूरल आर्टिस्ट, यानी जो गांव और जो भी रूरल आर्टिस्ट वगैरह हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड इसका काम ही है इम्प्लीमेंटेशन करना, प्लानिंग करना, मैनेज करना इन सारी चीजों को जो रूरल एरियाज में, कह सकते हैं कि एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है ये रूरल एरिया में। ऐसे आपका एपेक्स बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये एपेक्स बैंक की तरह काम करता है कहाँ पर, रूरल एरियाज में, ठीक है। रूरल लेवल पे जितने भी क्रेडिट फैसिलिटी, लोन वगैरह जो भी है, ट्रेनिंग वगैरह, वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोन्स भी प्रोवाइड करता है नाबार्ड। कौन कौन टाइप के लोन्स प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह भी देता है। शॉर्ट टर्म लोन किसको देता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखवाऊंगी वो है, नाबार्ड की स्टोरी चल रही है, नाबार्ड की स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। अब जैसे गांव में शॉर्ट टर्म लोन किसको जरूरत पड़ता है, ज्यादातर फार्मर्स को। उनके पास क्या सिचुएशन होता है कि बेसिकली उनको क्रॉप्स के लिए बेसिकली लोन चाहिए होता है, तो वो लोन जो है शॉर्ट टर्म लोन्स नाबार्ड, जैसे शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं, जो साल भर के अंदर के लोन्स होते हैं ज्यादातर, तो मतलब वैसे लोन्स भी वो प्रोवाइड करते हैं कि एक सीजन में किसी ने लोन लिया, नेक्स्ट सीजन में वापस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह भी दिया जाता है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म लोन्स भी है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स वगैरह भी जो है नाबार्ड की स्कीम के अंडर में आते हैं, लेकिन ये जो स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट लेकर आता है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसका खर्च वगैरह जो भी है वो उठाता है गवर्नमेंट, ठीक है।
अभी इसी के अंडर में आपके और भी स्कीम्स आए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी के अंडर में आया, नाबार्ड के अंडर में, ठीक है। नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस वो भी इसी के अंडर में आया है। वेयर हाउस समझते हो क्या होता है वेयर हाउस? वेयर हाउस क्या होता है? यस मैम। क्या होता है वेयर हाउस? स्टॉक रखा जाता है। जो किसान का जो फसल होता है उसको स्टोर करने में काम आता है, उसमें रेफ्रिजरेटर रहता है। जो वेयर हाउस होता है दैट इज अ स्टोरेज पॉइंट, ठीक है, स्टोर किया जाता है बेसिकली फूड ग्रेन्स वगैरह को, ठीक है। तो वेयर हाउस डेवलपमेंट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो भी नाबार्ड के अंडर में ही आता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फंड मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वो भी किसके अंडर में आता है? नाबार्ड के अंडर में। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया आपका। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी आपके इसी के अंडर में, नाबार्ड के अंडर में है। तो बहुत सारे जितने लगभग गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं वो नाबार्ड के अंडर में ही आते हैं। फिर नाबार्ड के अंडर में फार्मिंग सेक्टर का कोई स्कीम है वो भी इसी के अंडर में आएगा, ठीक है। तो ये सारी थी एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपके नाबार्ड की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कि नाबार्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और एक है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और सेकंड है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अंडर में इसको लाया गया है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके RADP प्रोग्राम्स के? सबसे पहले जो RADP प्रोग्राम है ये सपोर्टेड है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है? क्रिएशन, मेन इसका क्या है? ये क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इनकम अपॉर्चुनिटी मिले और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए इसको लाया गया है, ठीक है। हमारी क्लास के तो RADP जो प्रोग्राम है बेसिकली रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको सपोर्टेड किसके द्वारा सपोर्टेड है? ये आपका नाबार्ड के द्वारा। इसका लाने का रीजन क्या है? इसका लाने का सबसे बड़ा रीजन है बेसिकली सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इनकम जनरेशन, यानी एम्प्लॉयमेंट मिले और साथ साथ ही इनकम जनरेट हो, ठीक है। ये दो इसका रीजन है। किस चीज का रीजन है? RADP प्रोग्राम को लाने का। और ये चाहता है और एजुकेट करे किसको? अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ को, यानी जो रूरल यूथ है यानी गांव में जो यूथ है वो उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसका 2-3 टर्म समझ में आया होगा कि RADP सपोर्टेड बाय नाबार्ड and it is basically for the creation of sustainable employment, income opportunities for the rural youth, we can say rural youth, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है RADP को लाने का, तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सुनो सारे लोग, चलिए। तो रूरल RADP को लाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि द कंडीशन ऑफ द रूरल एरियाज ऑलरेडी वर्स एज कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज एंड द पॉपुलेशन ऑफ आवर इंडिया इज स्टिल हाई इन द रूरल एरियाज. So first we need to focus toward that particular area for the whole economic development and the growth of our country. So because of that they want कि rural areas में जो unemployment की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो, उस प्रॉब्लम को हम कम करें. इसी के लिए वहां पर एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चलाया जाता है नाबार्ड के अंडर में, और ये RADP के अंडर में भी चलता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर द एंटरप्रेन्योर, फॉर द रूरल पीपल, फॉर द रूरल यूथ, ठीक है, ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सके. क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखिए, ठीक है. और ये एक चीज और भी करता है, ये क्रिएट करता है कुछ माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह को जो असिस्ट करे एजेंसीज हैं, कुछ एजेंसीज वगैरह को जो NGOs वगैरह में इन्वॉल्व है और इनको एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं. यानी RADP के अंडर में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और वो भी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. साथ साथ RADP कुछ NGO से भी कनेक्टेड हैं जहां पर इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से कुछ एजेंसीज और NGOs की हेल्प लेकर के RADP प्रोग्राम जो है नाबार्ड के अंडर में चलता है. क्लियर हो गया? ये इसका ऑब्जेक्टिव है.
नेक्स्ट है कि REDP प्रोग्राम जो है उसके क्या क्या कुछ बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फंक्शन है बेसिकली REDP का, वो देखते हैं हम। वन द सेकेंड है कि इसमें जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, जिसको ट्रेनिंग मिलता है उसकी एज लिमिट है 18 इयर्स से 50 इयर्स, यानी जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है उस कुछ कंडीशंस REDP में, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि इसमें स्किल और अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ को ट्रेनिंग मिलता है। जो ट्रेनिंग का एज होना चाहिए, यानी जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है उनका एज 18 साल से लेके 50 साल तक होना चाहिए, लाइक 18 to 50 इयर्स, 18 to 50 इयर्स। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डिफर करता है, यानी अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, और मिनिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 4 वीक का है, यानी 1 महीने का, और मैक्सिमम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है वो है 8 वीक का, यानी कि 2 महीने का। क्लियर हो गई बात? समझ में आया कि जो ट्रेनिंग होना चाहिए उनका एज कितना होना चाहिए, 18 साल से लेके 50 साल तक, और दूसरा जो इसमें ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो कितना होगा, 4 वीक से लेके 8 वीक तक। क्लियर हो रहा है? ये जो प्रोग्राम है, जितने भी इसमें प्रोग्राम्स चलते हैं REDP के अंडर में, लगभग 25 से 30 पार्टिसिपेंट्स इसमें होते ही होते हैं, 25 से 30 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और प्रोग्राम जो है वो हेल्ड होता है सपोर्ट ऑफ NGO के द्वारा, और जो NGO रजिस्टर्ड होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। यानी जो प्रोग्राम्स जो चलते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो ये हैं, ये NGOs के हेल्प से चलते हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प से चलते हैं ये। और इनका जो NGO होना चाहिए वो कोई न्यू NGO नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना NGO होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और 3 साल कम से कम उसकी मिनिमम रजिस्ट्रेशन का टाइम 3 साल हो गया हो, 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, 3 साल पुरानी NGO होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। क्लियर हो गया? इसके कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन REDP के क्या क्या है, कौन बताएगा मुझे REDP के बारे में थोड़ा सा, जितना मैंने बताया है वो? मैम ये क्रिएशन एंड सस्टेनेबल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देती है। थोड़ा जो तेज बोलिए बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, तेज आवाज थोड़ी तेज। मैम ये क्रिएशन एंड सस्टेन एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देती है। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे करती है। कुछ कंडीशन से इसके अंदर जो प्रोग्राम चला जाते हैं वो NGO की हेल्प से चला जाते हैं। वो NGO रजिस्टर्ड होना चाहिए और 3 साल कम से कम पुराना होना चाहिए NGO, और पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनका एज 18 साल से 50 साल तक का होना चाहिए। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है 4 वीक से 8 वीक तक का होता है, मिनिमम 4 वीक का और मैक्सिमम 8 वीक का। ओके, गुड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी इसके बारे में पढ़ते हैं, REDP के बारे में, ठीक है। और NGO जो होने चाहिए, जो भी इनवाइट कर रहे हैं, जो भी REDP प्रोग्राम में हेल्प कर रहे हैं, वो NGO के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। लाइक दे शुड हैव इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो अपने तरफ से हो, या तो फिर ये कुछ जो भी इनके जो गवर्नमेंट वगैरह उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे, ठीक है, लेकिन इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट कर पाए। क्लियर है? तो ये REDP का कुछ बेसिकली छोटा मोटा फंक्शंस था, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी चीजें चलती है, जैसे प्री ट्रेनिंग फेज भी चलता है, ट्रेनिंग फेज भी चलता है। ट्रेनिंग फेज में ये क्या क्या चीजें बताते हैं, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान ये क्या क्या चीजों पे ध्यान रखते हैं। तो इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्या फीचर्स है REDP के? पहला चीज है कि यहाँ पर ये मोटिवेशन का काम करते हैं, यानी अचीवमेंट मोटिवेशन का काम करते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो भी बने वो मोटिवेटेड रहे अपने वर्क को लेकर के, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इनको क्या क्या चीजें बताई जाती हैं? पहली बात मोटिवेशन के बारे में। सेकेंड चीज है इनको गाइडेंस दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, डिफरेंट आपके जो मार्केट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में इनको गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, मोटिवेशन के बारे में बताया जाता है। साथ साथ इनको नॉलेज भी दिया जाता है अबाउट द डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कीम के फायदे, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो,
चाहे वो कुछ और भी कोई भी नया प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्सिडी से रिलेटेड हो, सारी चीजों के बारे में जानकारी इसमें ट्रेनिंग फेज में दिया जाता है। किनको? आपके यूथ को, रूरल यूथ को, ठीक है। उनको मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि आप मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, सर्विस का। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई जाती है? अचीवमेंट मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड गाइडेंस, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड गाइडेंस। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन से कुछ याद आ रहा है? अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन से कुछ याद आ रहा है? कोई थ्योरी याद आ रही है? पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर, ठीक है। पीटर ड्रकर इनोवेशन के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। मोटिवेशन से क्या याद आ रहा है? मोटिवेशन से क्या याद आ रहा है? Motivational theory and some term. मोटिवेशन, मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड काकीनाडा एक्सपेरिमेंट। याद आया मोटिवेशन से कुछ? चलिए, तो यहाँ पर हम आरईडीपी में वापस आ जाते हैं और आरईडीपी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते और हैं कि यहाँ पर क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जाता है। अचीवमेंट मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड गाइडेंस। थर्ड है आपका नॉलेज रिलेटेड विद द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, नॉलेज रिलेटेड विद द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। यहाँ पर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड है यहाँ पर मार्केटिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। मार्केटिंग एस्पेक्ट्स यानी आप कैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज का और मार्केट के एस्पेक्ट्स, एरियाज, रीजनल वाइज, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे आप देख सकते हैं कंपटीशन क्या है मार्केट में, इसके बारे में आपको बताया जाता है मार्केटिंग एस्पेक्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी भी बताया जाता है कि जब आप अपनी कंपनी शुरू करते हैं, जब अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं आप, तो एट दैट टाइम मे बी आपके पास बहुत ज्यादा इंप्लॉइज ना हो, तो आप इतने खुद सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए कि आप बुक कीपिंग का काम, वहां के अकाउंट्स को या संभालने का काम खुद कर सके, ठीक है। यानी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कर सके रिलेटेड विद द अकाउंट्स वगैरह कि कितने रॉ मटेरियल आए, क्या ओवरहेड कॉस्ट लगा, कितना वेरिएबल कॉस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में भी क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ साथ में आपको मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी बताया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि मेन, वुमेन और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल, इनको आप कैसे मैनेज करें, ठीक है। रिसोर्सेज में सब कुछ आ जाएगा, आपके पीपल भी आ जाएंगे यानी ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा, आपका मटेरियल यानी रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, और आपका मनी यानी कि आपका फाइनेंस वाला टर्म भी आ जाएगा। तो इनको किस तरीके से मैनेज करना है ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आरईडीपी में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट्स और रिपोर्ट्स वगैरह रेडी कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होगा, क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी ट्रेनिंग प्रोग्राम में? बैच 1 रोल नंबर 26 अंकित बताइए मुझे। बैच 1 रोल नंबर 26 ट्रेनिंग फेज में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएगी आरईडीपी में, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में? बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, मार्केट एस्पेक्ट्स को समझाया जाएगा, किस तरह से मार्केट एस्पेक्ट्स को देखना है, मार्केट को मतलब एनालाइज करना है। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी को भी बताया जाएगा, कैसे बुक कीपिंग करना है, अकाउंटेंसी करना है। और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और अनदर रिसोर्स को आप मैनेज कर सकते हैं, ये बताया। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि क्या क्या बेसिकली यहाँ पर प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या क्या ट्रेनिंग क्या क्या चीजों पे दी जाएगी, कौन कौन से सेक्टर में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ पोस्ट ट्रेनिंग सिस्टम भी है, लाइक जो प्रोग्राम्स है वो फैसिलिटेट करेगा कुछ बैंक लोन वगैरह, और एमएसएमई यूनिट के लिए लगभग 2 साल का पीरियड दिया जाएगा उनको कि अगर वो बैंक लोन वगैरह चाहते हैं ट्रेनिंग के बाद तो उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। यानी कि जब एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और कोई पर्सन ऑब्वियसली बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहा है तो उसके लिए यहाँ पर ये लोन भी प्रोवाइड करवाएंगे, आरईडीपी लोन भी दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं 2 साल तक, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के 2 साल तक अगर किसी को लोन चाहिए होगा बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए तो वो लोन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कौन कराएगा? आरईडीपी। क्लियर है? अब यहाँ पर इसके अंडर में कौन कौन टाइप के रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कौन कौन टाइप का आरईडीपी प्रोग्राम है, यानी आरईडीपी प्रोग्राम कौन कौन टाइप का है। आरईडीपी तो एक हमने कॉमन टर्म को पढ़ लिया जो नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट है, अब नाबार्ड में भी आरईडीपी भी अलग अलग है इसमें।
एक है इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लिखिए आरईडीपी के अंडर में ही आता है ये, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। लिख लिया सबने, आरईडीपी के अंडर में ही है ये, टाइप्स ऑफ आरईडीपी है ये, टाइप्स ऑफ आरईडीपी। प्रोग्राम्स है ना मैम, टाइप्स, don't judge my handwriting, it is quite difficult to write in the whiteboard but still I am writing, just think, just write according to this, REDP, types of REDP। अब इसके अंडर में पहला है आपका SWSY, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, एक मिनट ये जी होना चाहिए, SGSY, SGSY, स्वर्ण जयंती, जे होगा ना मैम, जी है, जी है, नहीं स्वर्ण जयंती को एक साथ ले लिया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, समझ में आया, स्वर्ण जयंती ग्राम, ग्राम का मतलब गांव, रूरल, स्वरोजगार योजना, SGSY, ठीक है। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था, इसको शॉर्टकट में सुन लीजिए, बस प्रोग्राम का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मेन था, ये 1999 में इसको लाया गया, SGSY को, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को, और इसका मेन प्रोग्राम था वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल पुअर पीपल के ऊपर, बट इसका ऑब्जेक्टिव था असिस्ट करना बीपीएल को। बीपीएल समझते हो क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, इसका एम तो यही था कि यूथ को ट्रेनिंग दे और हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लेकिन मेन बेसिक जो इसका फोकस था वो किस पे था? बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पर, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग थे रूरल एरियाज में, जो गरीब लोग थे, उनपे सबसे ज्यादा फोकस करने का काम किसका था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर स्वरोजगार का मतलब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो था अबव पॉवर्टी लाइन को भी मिल रहा था, बट इनका फोकस जो था बेसिकली बीपीएल पे था, बिलो पॉवर्टी लाइन पे। नेक्स्ट लिखिए NPRI, नेशनल प्रोग्राम फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। NPRI, second NPRI discussed. Who is going to tell me? Raise your hand. Raise your hand. Yes, Shipra. यस मैम, इसका फर्स्ट टाइप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1999 में स्टैब्लिश हुआ था, मतलब स्टार्ट किया गया था। और इसका क्या एम था? हम इसका मतलब एम ये था कि क्या कहते हैं, जो रूरल यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देना, और मतलब ऑब्जेक्टिव इसका जो फोकस कहेंगे वो था कि बीपीएल को असिस्ट करना, बिलो पॉवर्टी लाइन पे बेसिकली इसका फोकस था, ठीक है। यस मैम। प्रोग्राम फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक बात स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसका काम क्या है कि रूरल इंडस्ट्रीज में, रूरल इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह, आर्टिशन क्लस्टर वगैरह जो है, उनके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना, यानी सपोर्ट की तरह काम करता है वहां पर रूरल प्रोग्राम फॉर ये नेशनल प्रोग्राम फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, ये क्रिएट करता है रूरल इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है, क्रिएशन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। फिर आर्टिस्ट वगैरह को जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट चाहिए, उसकी सर्विसेज वगैरह विलेज वगैरह में, विलेज इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करना, यानी विलेज इंडस्ट्रीज को काइंड ऑफ ये सपोर्ट करता है, वहां के आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर, तो उसको भी सपोर्ट करने का काम कौन करता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है।
और यहाँ पर इसके अंडर में बहुत सारी और भी मिनिस्ट्री हैं। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंडर में काम करती है। ठीक है, 1999 में इसके अंडर एनपीआरआई के अंडर में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है एक बजट वगैरह लेकर आया था। फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज के अंडर में ये काम करता है बेसिकली एनपीआरआई। एक्चुअल में ये नाबार्ड के अंडर में ही है, लेकिन कुछ मिनिस्ट्री और भी सपोर्ट करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज, तो ये इसके अंडर में है। और इसके साथ साथ सिडबी भी इसमें हेल्प करता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। साथ साथ में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, वो भी इसके साथ मिलकर काम करता है। मतलब ये सारी जो है मिनिस्ट्रीज एंड ऑल, ये सारे भी एनपीआरआई में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिडबी हो गया, नाबार्ड तो है ही, सिडबी है, नाबार्ड है आपका, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज है, फिर आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है। तो ये सारी मिलकर के इसमें काम करते हैं। इसके सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, यानी इसको इम्प्लीमेंट करने में इन लोगों ने हेल्प किया है। किसको इम्प्लीमेंट करने में? एनपीआरआई को इम्प्लीमेंट करने में ले जाएंगे। चलिए पता है तुम लोग की क्लास में ना जस्ट है ना शमाइल? नो मैम। ऊपर है समाइल मैम। नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो एनपीआरआई के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो और भी हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो काम है वो रूरल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। सपोर्टिंग एजेंसी की तरह काम करते हैं ये, कि जो जो चीजें जरूरत पड़े इंडस्ट्रीज के लिए, रूरल इंडस्ट्रीज के लिए, वो इनको प्रोवाइड किया जाए। और इसको इम्प्लीमेंट करने में नाबार्ड के साथ साथ और भी कुछ आपके मिनिस्ट्री और बैंक्स हैं जो हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं। सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड आपके रूरल इंडस्ट्रीज हैं, फिर आपके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज भी हैं जो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं एनपीआरआई को। नेक्स्ट इज माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री क्लास। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री लिखिए एमएसई, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। ये थर्ड है, इसको कैसे लिखना है लिख देखिएगा, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, एमएसई, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। आगे डैश दीजिएगा, डैश। ठीक है, आगे लिखिएगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैम एमएसआई होना चाहिए ना, इंडस्ट्री। एमएसई इंटरप्राइज, सॉरी एमएसई मैंने लिखिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज डैश सीडीपी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज डैश क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, फिर डैश देके क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तीसरा है, पहला था एसजीएसवाई, सेकंड इज एनपीआरआई, थर्ड इज एमएसएमई डैश सीडीपी। अगर कभी रूरल एरियाज पे स्पेशली आए कि हाउ वी प्रमोट द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो यू कैन राइट अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड और सिडबी के बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि सिडबी के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो रूरल एरियाज में हैं। ठीक है, तो बट नाबार्ड के बारे में यू कैन राइट। तो अब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो क्या है? यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है एमएसएमई का, मिनिस्ट्री के द्वारा रेफरेंस के द्वारा इसको शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया। यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच है। यहाँ पर इनहांस, क्या चीज की इनहांस करने पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? इनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, किस किस चीजों पे काम किया जाता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए एंड कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? काम किया जाता है। किसके द्वारा? एमएसएमई इसको एज अ सपोर्ट करती है, रेफरेंस के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और ये तीन चीजों पे काम करती है, प्रोडक्टिविटी पे, कॉम्पिटिटिवनेस पे एंड कैपेसिटी। किन की कैपेसिटी कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो रही है? तो एमएसई की, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो विलेज एरियाज में हैं, उन एरियाज में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, मतलब कि जो बेसिकली इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए, यानी प्रोडक्ट इफिशिएंट बने,
मार्केट में दूसरे इंटरप्राइज के साथ कॉम्पीट करने लायक बने, यानी क्वालिटी इन्हांसमेंट का भी बात हो रहा है यहाँ पर कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इन्हांस हो, कंपटीशन के लायक प्रोडक्ट हो, एंड तीसरा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि वो ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो इन 2-3 चीजों पे यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और किन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? आपके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पे। ठीक है, तो MSE क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यही है, और साथ साथ में इसको इनेबल और भी सर्विसेज वगैरह भी इनेबल करता है ये, जैसे बैंक और क्रेडिट सर्विसेज वगैरह। ठीक है, और कुछ कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज वगैरह, रिड्यूस करना कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी यानी किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराया जा सकता है, सर्विसेज वगैरह। तो ये इसमें और भी कुछ एडिशनल सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है किसमें? माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो मेन स्ट्रैटेजी है वो यही है कि इन्हांस करना प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग किसका? माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का, और साथ साथ में क्लस्टरिंग करे यूनिट को, सर्विसेज प्रोवाइड करे, बैंकिंग फैसिलिटीज दे, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्ट्रैटेजी उनको बताए। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें प्रोवाइड होती है? आपकी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। नेक्स्ट लिखिए, बस आई गेस इतना ही था, 2-3 ही थे इसमें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ REDP डन। सेकेंड लिखिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? REDP। ठीक है, REDP, और यहाँ पर था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट के द्वारा ही शुरू किया गया था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली लाया गया था फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, पॉवर्टी रिडक्शन हो। तो किसके द्वारा बेसिकली रिडक्शन हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, पॉवर्टी रिडक्शन हो। ठीक है, और जो बेसिकली REDP का एम था लगभग वही सेम एम था इसका भी, कि यहाँ पर जो ओवरऑल रूरल ग्रोथ हो और इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ हो रूरल एरियाज में, पॉवर्टी रिडक्शन हो, सिचुएशन प्रोडक्टिविटी वहां पर इंक्रीज हो। ठीक है, वहां के यूथ को मौका मिले ताकि वो भी अपने टैलेंट को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में शो कर सके, उनको भी इतनी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बेसिकली सिचुएशन क्या है? यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? मैम, ये जो स्कीम्स चलते हैं तो इनका ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे एनालिसिस होता है क्या कि ये कितना सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? एग्जैक्टली होता है। ये बेसिकली मैं बताती हूँ आपको कि स्वच्छ भारत अभियान चला था, याद है? स्वच्छ भारत अभियान याद है आप लोग को? Yes, स्वच्छ ma'am. भारत अभियान कब चला था? स्वच्छ भारत अभियान अंकित 2000 समथिंग या मैम 16 या पता नहीं, कंफ्यूज हूं मैम, याद नहीं एग्जैक्ट ईयर। 2014 में चला था। It was started on 2nd October 2014, right? And it was continued till that project is for 5 years, और इसका 5 साल का प्रोजेक्ट था 2019 तक का। ठीक है, या इसकी क्वार्टरली या ईयरली, इसकी क्वार्टरली नहीं ईयरली एनालिसिस होती है कि ये कितना सक्सेसफुल है। यानी कि जो हमारा एम है, कोई भी स्कीम और प्रोजेक्ट लाने का एक एम होता है गवर्नमेंट का कि भाई हम 5 साल में इतने लोग को एम्प्लॉयमेंट दे दे, 2 साल का प्रोजेक्ट है तो इतने साल एम्प्लॉयमेंट दे दे, इतने लोग को एम्प्लॉयमेंट दे, इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए, इतने सारे वर्क करे। वैसे ही सेम जो स्वच्छ भारत अभियान था उसका 10% टॉयलेटरीज बनाने का स्कीम था, 9%। यानी जब 2014 में शुरू हुआ तो 3% जो थे टॉयलेट्स प्रेजेंट थे इंडिया में, उसको वो 9% करना चाहता था गवर्नमेंट। तो उसका स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि 9% गोल था कि अचीव करे, और पता है 2019 में 10% उन्होंने अचीव किया। तो ये सक्सेस रेट जो था उनका कहीं ना कहीं इंक्रीज था, ना कि डिक्रीज था। तो ये कि इवैल्यूएशन जो है वो हमेशा ईयरली बेसिस पे इंस्पेक्शन चलता रहता है कि कितने लोगों तक ये स्कीम पहुंचा है। समझ में आया? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसको मत लिख लेना आप लोग स्वच्छ भारत अभियान। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट?
कि यानी अचीवमेंट का जो रेट है वो कितना हाई है। अगर अचीव गवर्नमेंट का स्कीम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होता है तो उसको रिन्यू करके वापस से लाया जाता है, या तो फिर उसके ऊपर फिर से काम किया जाता है, या तो बहुत सारे स्कीम्स बीच में भी बंद हो जाते हैं। क्लियर हो गया अंकित? यस मैम, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्किल डेवलपमेंट जो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि पॉवर्टी रिडक्शन करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, यूथ जो है उनको मोटिवेट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए। जो नॉर्मल आपका आरईडीपी का था लगभग सेम ही ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर भी सेम ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर कुछ चीजें थी, यहाँ पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाया जा रहा था। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे मैं बताती हूँ, एक स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? सुने हैं मैम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो बेसिकली पीएमकेवीवाई इसको कहते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो 3 महीने एंड 6 महीने के लिए शुरू किया गया था। इसके अंडर में क्या क्या चीजें होती थी मैं बता देती हूँ, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें भी पीएमकेवीवाई आएगा, स्किल डेवलपमेंट में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आएगा, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके जाने से पहले मैं बता देती हूँ इसमें 3-3 महीने का कोई प्रोग्राम था, जैसे रिटेल मैनेजमेंट प्रोग्राम था, आईटी के कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए थे, ज्वेलरी डिजाइनिंग के प्रोग्राम्स थे। जैसे इतना डीपली मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि इसमें गवर्नमेंट क्या क्या चीजें देती थी, मैं थोड़ा डीपली आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। गवर्नमेंट आपका एनरोलमेंट करवाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसको पीएमकेवीवाई को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स को लाया गया सामने। उसमें से कुछ इंस्टीट्यूट थे जैसे सॉफ्ट स्किल, और यहाँ पर सॉफ्ट स्किल पे भी काम होता था, यानी इंग्लिश भी सिखाया जाता था। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे था, रिटेल मैनेजमेंट पे था, ज्वेलरी डिजाइनिंग पे था, आईटी पे था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कुछ बेसिकली वोकेशनल कोर्स थे, इंडस्ट्रियल कोर्स जो होते हैं आपके आईआईटी नहीं आईटीआई कराता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज चलते हैं वो भी पीएमकेवीवाई करवा रहा था, कुछ इंस्टीट्यूट को के साथ लिंक करके खुद को, ठीक है। वो प्राइवेट भी इंस्टीट्यूट थे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, दोनों जगह पे उन्होंने लिंक बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक तो एनरोलमेंट फ्री दे रहे थे और 10th क्लास एलिजिबिलिटी था, यानी जो बच्चा 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है वो आराम से इसमें एडमिशन ले सकता है। और गवर्नमेंट ना मॉनिटरी बेनिफिट भी दे रही थी पीएमकेवीवाई में 10,000 रुपए का, यानी जो बच्चा एडमिशन लेगा, पढ़ाई करेगा, और जब वो पढ़ाई करके निकलेगा तो उसके हाथ में 10,000 रुपए होंगे जॉब ढूंढने के लिए। और इवन कंपनीज भी बुलाया जा रहा था प्लेसमेंट के लिए, यानी प्लेसमेंट भी मिल रहा था उसके द्वारा, पीएमकेवीवाई के द्वारा। तो यहाँ पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग के सपोर्ट से बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करना। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली, ठीक है। और मतलब लेबर मार्केट वगैरह जो इंडिविजुअल मार्केट्स वगैरह पे, ये सब जगह पे बेसिकली एप्लीकेबल है रूरल एरियाज में। एंड इसके जो कुछ स्किल गैप, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स वगैरह है, क्योंकि उनके अंडर में मतलब उनको वो स्किल्ड उनका डेवलप नहीं है, तो उनको बेसिकली टैलेंट और नॉट एग्जैक्टली टैलेंट, उनके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है। यहाँ पर उनका कहना है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने का मेन मकसद यही था कि जो गैप हमेशा बना होता है कि पुअर क्वालिटी ऑफ लेबर है, ठीक है, क्वालिटी उनका प्रॉपर नहीं है, बेसिकली वर्क के टुवर्ड उनको वर्क प्रॉपरली नहीं आता है, उनका स्किल प्रॉपर नहीं है, तो उसको इन्हांस करने के लिए ये बेसिकली प्रोग्राम जो था इसको लाया गया था। तो इसमें कुछ स्किल गैप को बेसिकली मैनेज करना इसका एक बहुत बड़ा एम था, स्किल गैप को मैनेज करना, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स भी थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा यहाँ पर कुछ यूथ के लिए ट्रेनिंग आया। फिर आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर काम हुआ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसमें काम हुआ। तो इसको जो है ना हम, ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार दोबारा से शुरू करेंगे। REDP आई गेस सबको समझ आ गया होगा, नबार्ड के फंक्शंस वगैरह सबको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट। चलिए मुझे कौन बताएगा REDP के तीनों प्रोग्राम के बारे में? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? रेज योर हैंड। REDP के प्रोग्राम के बारे में मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड। यस सृष्टि।
यस मैम, इसमें 3 प्रोग्राम है और पहला था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको 1999 में स्टार्ट किया गया था। इसका एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और यूथ ट्रेनिंग, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को। और सेकंड था NPRI, मतलब प्रोग्राम फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लस्टर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जो इंडस्ट्री मतलब रूरल एरिया में इंडस्ट्री को डेवलप करना का, जिसमें वो सपोर्ट करता है और इसमें आर्टिस्ट लोग को भी सपोर्ट किया जाता है। ये इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका है 1999 में फाइनेंशियल बजट पास किया गया था। इसमें मिनिस्ट्री, इसमें अर्बन एंड रूरल इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री में किया जाता है। इसमें सीडबी भी सपोर्ट करता है और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री भी सपोर्ट करता है। थर्ड था माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये MSME मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसका मेन फोकस होता है, ये इनहांस करता है प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और कैपेसिटी। इसको MSME सपोर्ट करता है, जो क्वालिटी को इनहांस करता है, प्रोडक्ट को कंपटीशन के लायक बनाता है, और ये सर्विस भी इनेबल करता है, जैसे कि बैंक क्रेडिट फैसिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, गुड। एनीवन? ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, सी यू ऑल ऑन फ्राइडे।